ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਭਾਗ 3 ਦਾ 6ਵਾਂ ਪਾਠ ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਵੀ ਵਿਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਕੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਸਹਿਕ ਗਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ। ਰੋਕੇ ਭਲਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਸਹਿਕ ਗਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਜਿਉਂ ਆ ਭੁੱਖਾ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਏ ਭਾਗ ਭਰੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਆਫਤ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪਿਆ। ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਬਘਿਆੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਘਿਆੜ, ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਆਈ ਆਫਤ ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪਿਆ, ਕਿ ਮੂੰਹ ਆਈ ਆਫਤ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਆਫਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਪੂਣੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ। ਪਿੱਤ ਪੈ ਗਏ ਭੋਖੇ ਦੇ ਸਭ ਸ਼ੈਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤ ਪੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਰੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਰੱਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੂਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ है, हमारी नसों में जो खून चलता है वो उन्हीं के अंदर सूख गया, ऐसी भूख मरी पड़ी। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ, ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਪੇਟ ਪਿਆ ਝੁਲਕਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ। ਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, मतलब वो भी उसके सामने घुटने उन्होंने भी टेक दिए थे, वो भी झुक गए थे। ऐसा अकाल पड़ा था। ना पेट ਪਿਆ ਝੁਲਕਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝੀ। ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਲਕਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸੜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਕਿ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ कुछ खानियाँ नहीं, जब माँ होती है वो दूध पिलाती है तो उसको खाने पीने के लिए भरपूर चाहिए। जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों को वो दूध कैसे पिला पाएंगी। कई हीरे मावां दे लख तरले करन लगे, चुंग के थण सुके लै के विलकणियाँ, जद जीवन जोगे भी लुच के मरन लगे। कि ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे बच्चे सी वो फिर भी चुंग के, मतलब अपनी माओं का दूध पीने लगते हैं, रोते चिल्लाते हैं, और उनको जब उनका पेट नहीं भरता तो वो मरने लगे, मतलब भुख नाल उन्हां दे हाल बेहाल हो गया। पंजाबी राजे तो रणजीत प्यारे तो, एक झाकी दर्दां दी तद गई सहारी ना, दुखियां दे दर्दी तो लिसियां दे सहारे तो। कि पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ दर्द देखा नहीं गया। एक दुख दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो उसने उन लोगों का दुख दर्द को दूर करने का सोचा। ढंडोरा दे दिता होका फिरवा दिता, पतना चौराहियां ते शाही दरवाजे ते, ਇਹ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ लिख के लगवा दिता। कि उन्होंने ढंडोरा दे दिता, होका, कि उन्होंने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, और लोगों को आदेश दे दिया कि हर जगह पे पत्तना ते, जो पत्तन हुंदे हन, नदी दे कंढे हुंदे हन, चौराहे होते हैं जो गली चौराहे, शाही दरवाजे, वहाँ पे उन्होंने लिख कर लगवा दिया। राजा ता राखा है भंडार प्रजा दा, तड़के तो शामां तक दरवाजे खुले हन, अन हर कोई लै जावे है सारा प्रजा दा।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਜਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, मतलब दरवाजे खुले हैं। जो लोग जितना चाहते हैं वो अन्न उठा के, खाने पीने का सामान वो वहाँ से आके ले जाएं। एक वारी जितने भी कोई चाह के ले जावे, हिंदू सिख मुस्लिम दा कोई खास मुलाजा नहीं है, जिसनों लोड़ बनी वो आके ले जावे। उन्होंने बोला कि जिसको जितना चाहिए वो उठा के एक बार में ले जाए। हिंदू मुस्लिम सिख का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जात पात का, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना आके ले जाए। सुंजे जहे कूचे विच लाहौर दी वासी विच एक मोची बाचड़े दी कन्नी ए भणक पई, एक आसा चमक पई झट आण उदासी विच। कि सुंजे विच कूचे विच एक ना बहुत छोटी जगह विच लाहौर दा एक वासी सी, वो सी मोची जो जूते वगैरह का काम करते हैं, उनको जूते होते हैं ना, जूते गंढन का काम करते हैं। तो उसका जो बच्चा होता है उसके कान में ये बात पहुंचती है। जब उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया, जब उन्होंने होका दवाया तो उसके कान में ये गल पहुंचती है। तो एक आस चमक पई झट आण उदासी थी, तो उसकी उदासी गायब हो जाती है, उसको एक आस दिखाई देती है। झट बूहों अंदर हो दादे दुखियारे नूं, ए पोता कहण लगा ढिड उत्ते हथ धर के, भुखां दे रुलाए नूं वक्तां दे मारे नूं। कि झट मतलब तुरंत, बूहों मतलब गेट के अंदर होके अपने दुखी दादाजी को वो बच्चा कहने लगता है, उसका जो पोता होता है जिसने वो आवाज़ सुनी होती है, पेट पे हाथ रख के कि हम जो पेट के कि हम बहुत दिनों से भूखे हैं, तो इसको अब हम दूर करने का वक्त आ गया। बाबा जी लादे दा ते दिया पछाइए। कि बाबा जी लादे दा मतलब राजे दा कह गया कि राजे ने ये होका दिता है, लादे दे महलों तो सब दाने ले आओ। लादे दे मतलब बच्चा तुतला के बोल रहा है कि राजे दे महलों तो सब जने राजे दे महलों चो दाने ले आओ। उत्थे कोई घाटा नहीं, अद वे परवाही है। कि उत्थे कोई घाटा नहीं कि वे परवाही नाल उत्थे सानू दिता जाएगा। जे मेले नाल तलों दाने ले आवां दे, तंदोरी उले कोलों मैं फल के तुरदा हाँ, लै तल लै आइए लज लज के थावांगे। कि तुसी मेरे नाल चलो तां आपां उत्थों दाने लै आवांगे। कि मैं थोड़ी डंगोरी उरे करो, जिस नाल डंडे नाल उसके दादा जी तुरदे हैं, मैं फड़ के तुरदा हाँ, लै तल लै आइए लज लज के खावांगे। कि चल जे आपां हुण लै आइए तां आपां रज रज के मतलब पेट भर भर के खाएंगे। सुन बुढ़ड़े मोची नूं लग सीने तीर गया, पोते दियाँ लाडलियाँ थथियाँ ते तोतलियाँ। कि जो बुढ़ड़े मोची नूं मतलब उसके बूढ़े दादाजी थे, उनके सीने में तीर लगा, उन्होंने अपने जब पोते की लाडली ऐसे तोतली आवाज़ में बातें सुनी गई। का दिल ते कर गईयाँ नैना चो नीर गया। तो उनके दिल पे सीधा उन्होंने घाव कर दिया ऐसी बातों ने, और उनके नैन मतलब आँखों से नीर पानी बहने लगा। तक हिम्मत अपनी नूं पहले तां झुरियाओ, पर अज पोते दी भुख जिंदे नूं खांदी सी, हत्थां च डंगोरी लै लक बन के तुरियाओ। उसने हिम्मत की, पहले तो उसने बहुत ही ऐसा फील किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा, पर उसने हिम्मत करके उठा। पहले तो उसने अपने आप को हताश हुआ, पर अपने पोते की कि वो भूख से उसका बुरा हाल हो रहा है, इस वजह से उसने अपने हाथ में डंगोरी मतलब जिस लाठी से वो चलते थे झुक के, लक बन के तुरे आओ। तो फिर उन्होंने खड़े होने जाने का इरादा कर लिया। हिचकोले खांदा हो इऊं जिउंदा मरदा हो, पोते नूं नाल लई डंगोरी फड़ी हुई, पुज गया भंडारे ते लख तरले करदा हो। हिचकोले मतलब हिल हिल के चलता हुआ वो आगे को चलता है अपने पोते को साथ लेके, और उसके हाथ में वो उसकी डंगोरी होती है। पुज गया भंडारे चो, जहाँ से राजा के भंडारा लगाया हुआ था, सबको अनाज मिल रहा था, वहाँ पे पहुँच गया। बहुत ही मुश्किल से उन्होंने वहाँ तक का सफ़र किया। कि गयाई बोली विच ओ अर्ज सुना दिती, जा कोल भंडारी दे मारे लाचारी दे, मैले जी चादर एक चुपचाप बिछा दिती।
उन्होंने अपने बहुत हिचकाते हुए अपनी अर्ज सुनाई, और जो पंडारी मतलब जो भंडारी है, जो अनाज दाने सब लोगों को दे रहा है, तो उन्होंने अपनी लाचारी दिखाई, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो मैली चादर थी, वो बहुत ही ऐसी रद्दी फटी हुई चादर थी, उन्होंने वो बिछा दी चुपचाप से कि उसमें मुझे दाने लेके जाने। दर्दी भंडारी ने झट चादर भर दिती, उस दर्द रवाने दी, उस भुखण पाने दी आशा जो दिल दी सी झट पूरी कर दिती। कि दर्दी भंडारी ने झट मतलब तुरंत उसकी चादर अनाज से भर दी, उस दर्द रवाने दी, कि उस जो दर्द वाला इंसान था और वो जो भूखा इंसान था, उसकी जो आस थी उसको उन्होंने पूरा कर दिया कि अब वो पेट भर के खाना खा सकते हैं। पर पंड जो वन तरी सी 2 मन भारी हो। पंड मतलब जो गठड़ी, उसकी चादर की जो गठड़ी बन गई थी, क्योंकि वो चादर तो पुरानी थी और वैसे भी बहुत भारी हो गया, तो वो बुजुर्ग वो तो खुद मुश्किल से आए थे, तो वो कैसे उठाएंगे। पंड बोला जाता है गठरी को। जो बन तरी मतलब जो बांध के वहाँ तरी मतलब रखी। सी 2 मन भारी हो, तो वो थी 2 मन की थी, 80 किलो उसका वेट था। इकबाल अनजाना सी, अनजाना मतलब छोटा बच्चा, न्याना बच्चा। एक बाबा बुढ़ड़ा सी, बच्चा तो था वो बालक था, और जो बाबा होते हैं वो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो तो चल भी नहीं पा रहे। पंड चुकदा कौन भला तुरनो सी यारी हो, कि वो अपनी इतनी बड़ी गठरी कैसे उठाते, वो तो मुश्किल से चल ही मुश्किल से पा रहे थे। आखिर यूं कुदरत ने एक दो टुकाया ਏ एक सिख चिट कपड़िया दाड़ी सुदूध जही उस बुढ़ड़े बाबे ਵੱਲ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। दूध वर्गी चिट्टी मतलब सफ़ेद है। इस बुढ़ड़े बाबे वालों भज्या है, भाग के वो बाबा की तरफ आता है, जो वो बुजुर्ग होते हैं जिनसे वो गठड़ी उठाई नहीं जाती। कीती हमदर्दिया एवें ना चुर बाबा, मैं तेरा पुत्र हाँ कै पंड उठा लेती। फिर बोलिया बाबे नू घर चल घर नू तुर बाबा। उन्होंने हमदर्दी से बाबा को बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, आप ऐसे चुरना मतलब निराश ना हो, हताश ना हो। उन्होंने वो कै पंड उठा लेती, उन्होंने वो गठरी उठा ली। फिर बोलिया बाबे नू चल घर नू तुर बाबा, वो बोला कि बाबा आप घर को चलो, कि मैं आपके रास्ते में पीछे पीछे आपके आता जाऊँगा। तक बुढ़ड़े मोची ने लख शुक्र मनाया है, दिल दे विच कहंदा है बंदा बंदा नहीं, ये आजिज बंदे लई ये अल्लाह आया है। तो वो जब उन्हें देखते हैं, वो बुढ़ड़ा मोची, वो बूढ़े आदमी जब देखते हैं तो उन्होंने उनका लाख शुक्र बहुत उसका शुक्रिया अदा किया, और वो दिल से कहता है, दिल में सोचते हैं कि ये बंदा बंदा नहीं, कि ये आदमी नहीं है, ये आजिज बंदे लई ये अल्लाह आया, कि इस लाचार बंदे लई ये अल्लाह आया है, कि ये रब दा रूप आया है। ਉਹ ਪੰਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਭਾਰੀ ਏ ਪੰਡ ਬੜੀ ਭੈੜਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਏ, ਪਾਂਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਚੋਂ ਪਿਆ मुड़का वगदा है। ओ पांडी जाता है, पांडी मतलब वो चलने वाला, उसको पांडी बोला गया है। कि यह सोहना लगता है, तो वो कहते हैं कि कितना सोहना लगता है वो पांडी जाता हुआ रास्ता तय करने वाला। भारी ये पंड बड़ी पैडा भी चोखा है, पैडा मतलब उनके जाने का जो रास्ता है, चोखा मतलब काफ़ी है। पांडी दे पिंडे चों पिया मुड़का वगद, पांडी दे पिंडे चों मतलब उसके शरीर से पिया मुड़का वगदा है, पिया मतलब मुड़का मतलब उसमें से पसीना बह रहा है। पुज मुड़का बोला जाता है, पसीने को मुड़का बोला जाता है। पुज गया टिकाने ते मोची दे घर आया, पंड सुट के मुड़िया जा उत्थे तुरन लगा, उस बुढ़ड़े मोची दा दिल ढाडा भर आया। जब उन्होंने वहाँ पे उनके घर पे पहुँच जाते हैं, तो उन्होंने उनकी जो गठड़ी होती है वो वहाँ पे रख के जब वो वापस आने लगता है, तो जो बूढ़े होते हैं वो बुजुर्ग, उनका दिल भर आता है कि उन्होंने हमारी उसने हमारी मदद की। उस प्यारे पांडी दी, उस सोहने पांडी दी उस कन्नी पकड़ लई मनमोहने पांडी दी। उन्होंने जब वो आने लगा, वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था, पांडी था जो जिसने उनकी मदद की थी, तो उन्होंने उसकी कन्नी पकड़ ली कुर्ते की। दिलदारा यूं की थी दिल खोने पांडी दी, तो दिलदारी यूं की थी, उन्होंने उनको बहुत ही
प्यार आ रहा था उस पर, उनकी रहमत पे कि उन्होंने हमारी मदद की, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे। सरदारा जिਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਦੱਸ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਬੁੱਢੜੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਗਾਵੇਗਾ ਜਸ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ सरदारा ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, तेरा ਨਾਂ ਕੀ है, मैनू दस, तू मैनू तुमने मुझे मोल ले लिया है, तुमने मुझे मोल ले लिया है, और मैं कब्र में मरने के बाद भी तुम्हारा गुणगान करूँगा, तुम्हारा जश गाऊँगा। उस हीरे पांडी ने झट चादर ला दिती, वर्दी भी शाही है सिर ते भी कल गई है। बुढ़ड़े दे दिले अंदर एक हलचल पा देती। उस पांडी ने जब वो जो उनकी जिसने मदद की थी, उनकी गठड़ी उठाई थी, उन्होंने जो ऊपर से चादर थी वो उतार दी। वर्दी भी शाही है, उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई थी वो शाही थी, मतलब ऊंचे जो राजा लोग पहनते थे ऐसी वर्दी पहनी हुई, सिर ते भी कलगी थी। तो वो सिर पे ना एक कलगी रखते थे, जो राजा होते हैं ना, आपने देखी होगी, उनके साइड में एक कलगी ऐसे ना ऊपर पंखों की तरह लटकी रहती है। बुढ़ड़े दे दिल अंदर एक हलचल पा देती कि उन्होंने उससे सोचने को मजबूर कर दिया। बाबा मैं राजा हाँ, ना है रणजीत मेरा, नेकी है कार मेरी, सांझा है धर्म मेरा, प्रजा लई जांदियां पेशा है प्रीत मेरा। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਹੈ, नेकी है कार मेरी, सांझा है धर्म मेरा, कि नेकी करना ही मेरा काम है ते मेरा धर्म है वो सब दा सांझा है, मैं प्रजा लई अपनी जान दे सकदा हाँ, ऐसा मैं मेरा प्रेम प्रजा नाल है। काबल दियां कंधां तक मैं जिउंदा कूकर हाँ, हर प्यारे पर प्यारे बाबा जी प्रजा दा कूकर हाँ। कि बाबा जी वो उसनूं कहंदे हन कि काबल दियां कंधां तक, मतलब काबल कहा गया है इत्थे जो पाकिस्तान दी राजधानी है, उस दा इत्थे जिक्र किया गया। काबल उस दियां कि काबल दियां कंधां तक मैं पाउंदा कूकर हाँ, कूकर पाउंदा हाँ, कि मैं उन्हां नूं भी मजबूर कर देना, उन्हां नूं भी उन्हां विच भी गूंज पवा देना हाँ, पर प्यारे बाबा जी प्रजा दा कूकर हाँ, कि पर प्यारे बाबा जी कि मैं जिहड़ी प्रजा है मेरी उसदा मैं कूकर हाँ, मतलब मैं उसदा सेवक हाँ। औखे शब्दां दे अर्थ। भाणा रब दी इच्छा, वेला समा दाता परमात्मा, फाल चाल आफत मुसीबत, पूणी रंगा कमज़ोर, पित्त बीमारी, पांडी भार चुकण वाला, खलो गईयां रुक गईयां, मुलाजा लिहाज, भिणक पैणी पता लगना, आजज मजबूर, कि घियाई बोली बैठी हुई आवाज़, रवाना दुखी, आरी मजबूर, टुकाना मौका बनाउणा, झुरना चिंता करना, मुड़का पसीना, कन्नी मोढा, कूकर निमाणा सेवक, कूकर आवाज़ गूंजना। आओ हुण असीं इसते प्रश्न उत्तर करते हैं। हेठले हरेक प्रश्न का उत्तर 2-3 सतरां विच लिखो, मतलब 2-3 लाइनों में आपने इसके आंसर बताने हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कविता विच किहड़े भाणे दे वापरण की गल कीती है? तां कवि ने कविता विच अकाल वापरण की गल कीती है। अकाल पैण दा बुढ़ियां गभरूआं ते मावां ते की प्रभाव पिया? अकाल पैण नाल बुढ़ियां दा बुरा हाल हो गया सी ते गभरूआं नूं भी उसने झुका दिता सी ते मावां दीआं छातियां चों दुੱਧ सुੱਕ गए सन। राजे ने नगर विच की ढंढोरा फिरवाया, तां ढंढोरा फिरवाया कि जनता लई अनाज दिता जाएगा, ओह इत्थों आके जिन्ना उन्हां दा जी करदा उन्ना ही अनाज लै जाण। बुढ़े दी मुश्किल दा की हल निकलिया? तां बुढ़े दी मुश्किल दा हल निकलिया कि एक पांडी ने उन्हां दी, पांडी पातशाह भाव जो उन्हां पांडी दे रूप विच एक राजा सी, उसने उन्हां दी मदद की। पांडी ने बुढ़े मोची नूं की जवाब दिता? तां पांडी ने बुढ़े मोची नूं की जवाब दिता सी? तां उन्हां ने कहा सी, बाबा मैं राजा हाँ, मेरा नाम रणजीत सिंह है ते नेकी करना मेरा काम है, सारियां दा मेरा धर्म सांझा है ते मैं अपनी प्रजा नूं बहुत ही प्रेम करदा हाँ। अगे देखो, हेठां दित्तियां गईयां काफ सतरां नूं पूरा करो। मुटियारां कुड़ियां सब पूनी रंग हो गईयां, तां इन्हां नूं असीं इस तो अगली लाइन लिखांगे, पित्त पै गए भोखे दे सब छैल जवानां दे। इस लाइन को आपको ऊपर देख के फिर उससे
आगे वाली लाइन लिखनी है। राजा ता परजां दा भंडारा परजां दा। राजा ता राखा है भंडारा परजां दा। इस तो अगली लाइन उपरों देख के लिखनी है कि राजा तड़के तो शामां तक दरवाजे खुले ने, अन हर कोई ले जावे है सारा परजा दा। तो इसको आप जो मैंने अभी आपको ये पोइम की है उसमें से देख के इसको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद लिखना है उस कन्नी पकड़ ली मनमोहने पांडी दी। कन्नी मतलब उसने उसका मोढा पकड़ लिया। तो इस तो अगली लाइन लिखनी है कि दिलदारी ज्यों इऊं कीती दिल खोने पांडी दी। तो इसे आगे वाली लाइन यहाँ लिख दी जाएगी। भाषा ते व्याकरण। इस दे ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਸਕੇ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣੇ। ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਤ ਰਕਤ। ਇੱਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰੱਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਟੰਗ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਫਾਲ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਾਲ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੂਣੀ ਰੰਗੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੂਣੀ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਨੇ 'ਚ ਤੀਰ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬੁੱਢੜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੁੱਢੜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਢੋ ਢੁਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਢੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢੋ ਢੁਕਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।